بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جواد خان۔ آج جو ہے وہ ہم ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن نے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی ہوئی ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر میں JKPSC جب بھی کوئی اسکیجول دیتے ہیں تو اس پہ اسٹے معافی آ جاتے ہیں، تو اس پہ بھی بہت سارے اسٹے معافی نے کوشش کی ہے، لیکن بالآخر امتحانات کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہو گیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ امتحانات کا انعقاد تو بظاہر تو جو ہے وہ 100% ہے کہ PSC جو ہے اس نے انتظامات بھی مکمل کر دیے ہیں، اور جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کے لیے رول نمبر سلپس اور ان کی لسٹ وغیرہ بھی اپلوڈ کر دی۔ تو اس حوالے سے آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے زیر اثر ہونے والے امتحانات AES پیپر 2025 کا سلیبس ڈسکس کریں گے، اور آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو سلیبس ہے یہ کتنے نمبر کا ہے، اور اس سلیبس کے لیے ایسی سچویشن میں جب آپ کے سر پہ جو ہے وہ اسٹے کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہو، اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، کتابیں کھول کے بیٹھیں تو سوشل میڈیا کو کھولے دیکھیں وہاں پہ اسٹے کی خبریں گردش کر رہی ہے، اس طرح سارے ٹیمپو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کوئک جو ہے وہ بھی میرے خیال میں 25 سے جو ہے وہ ان کے امتحانات شروع ہو رہے، تو ابھی 10 دن ہیں۔ تو 10 دن میں ایسا کیا کیا جائے کہ آپ جو ہے وہ ان 400 نمبروں کے جو نمبرات کے پیپر ہیں ان کو آسانی سے حل کر لیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئک جو ہے وہ ابھی کام کرنا پڑے گا، ایز اے کیپسول لینا پڑے گا، کوئک جو ہے وہ ایکشن کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ جو ہے وہ ساری چیزوں کو سم اپ کریں گے۔ اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بڑی بینیفیشل ہے کہ چلیں کرکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورے سلیبس کا کرکس جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کیا چیز آپ نے کرنی چاہیے، تیار کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو سلیبس دیے ہوئے 400 نمبر کا سلیبس ہے، اور اس میں جو ہے وہ 4 جو ہے وہ مجموعی طور پر پیپر ہیں، بڑے پیپر ہیں۔ ان میں سب سے پہلا پیپر جو ہے وہ انگلش کا ہے، اور انگلش کے پیپر میں کیا کیا چیزیں آئیں گی 100 نمبر کی وہ اس کی ڈسکرپشن ہے۔ دوسرا ہے جنرل نالج کا پیپر ہے، اور جنرل نالج کے پیپر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کرنٹ افیئر 50 نمبر کا، اور پاکستان افیئر اینڈ ہسٹری آف کشمیر یا کشمیر افیئر 50 نمبر کا یہ ہوگا۔ اور تیسرا جو پیپر ہے وہ اردو کا ہے، اور اردو کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی وہ بھی ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کا ہے۔ اب یہ تو بظاہر دیا ہوا سلیبس ہے، لیکن اگر آپ پچھلے پیپر اٹھا کے دیکھیں، DOs کے پیپر اٹھا کے دیکھیں، آپ پروجیکٹ مینیجر کے پیپر اٹھا کے دیکھیں، آپ SCSO کے پیپر اٹھا کے دیکھیں، تو سلیبس جو ہے وہ بالکل اس طرح سے دیا ہوتا ہے، لیکن جب پیپر آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی کمپلین ہوتی ہیں کہ جی یہ تو یہ چیز دی ہوئی تھی اور یہ آ گئی ہے، تو اس کی کوئی پراپر ڈائمینشن نہیں دی ہوتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ جو جب وہ آؤٹ لائن آپ کو دے دیتا ہے، پھر وہ پیپر کی ان آؤٹ لائن کے کسی بھی حصے کو پوچھ سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک پراپر پلاننگ کے تحت تیاری کرنی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے گو تھرو ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں اٹھاؤں گا انگلش کا پیپر، اور انگلش کے پیپر کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنی پڑے گی اور کن کن حصوں کو آپ تیار کریں گے۔ انگلش کے پیپر کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایسے تیار کرنے پڑیں گے، سب سے پہلے ایسے۔ اب یہ جو ایسے ہیں یہ یہاں پہ جو ہے وہ علیحدہ سے تو نہیں ہے، ویسے باقی پیپر میں ایسے کا پیپر 50 نمبر کا علیحدہ سے ہوتے ہیں، تو یہاں پر 100 نمبر کے اندر انکلوڈ ہے، تو آئی ہوپ یہ اگر 20 نمبر کا بھی یا 25 کا بھی رکھے گا تو زیادہ تر جو ہے وہ 20 نمبر کا جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے، اور آگے کمپوزیشن جو ہے وہ 10 نمبر کی کمپوزیشن جو ہے وہ دے دیتے علیحدہ سے۔ تو آپ نے ایسے کو کس طرح سے تیار کرنا ہے، تو ایسے کے اوپر میں پورا ایک ڈیٹیل لیکچر دوں گا، لیکن پھر بھی جن لوگوں نے جو لوگ تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کی، تو وہ کرنٹ سچویشن کے جو ہے کرنٹ افیئر کی کچھ ٹاپکس دیکھ لیں، ہسٹری کے کچھ ٹاپکس دیکھ لیں، جنرل نالج کے کچھ ٹاپکس دیکھ لیں، جو ہے وہ ایوری ڈے سائنس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کچھ ٹاپکس دیکھ لیں، اور آپ پاس پیپر اٹھائیں، DOs کے پاس پیپر اٹھائیں، ACSO کے پاس پیپر اٹھائیں ابھی جو 24 میں ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے پروجیکٹ مینیجر کے پیپر اٹھائیں، اور ان کے اندر جو مختلف ایسے دیے ہوئے ہیں آپ ان ایسے اٹھائیں اور ان کو جو ہے وہ پریکٹس کریں، اور ان کے متعلق جو ہے وہ میٹیریل اکٹھا کریں۔ اب میں آپ کو علیحدہ سے ایسے لکھنے کا طریقہ سکھاؤں گا، ایسے کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے لیے میٹیریل کیسے جو ہے وہ سم اپ کیا جاتا ہے، کیسے ارینج کیا جاتا ہے، اور پوری وہ ایسے کی تفصیل ہوگی وہ علیحدہ سے آپ کے لیے ایک ویڈیو میں دوں گا۔ اب ایسے جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے جو ہے آپ کوئی تیار کر لیں، کوئی آپ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ 8 سے 10 ٹاپک جو ہے وہ تیار کر لیں،
और उनके मुताबिक जो है वो फिर आप ऐसे डिवेलप करेंगे। बेसिकली ऐसे मतलब ये नहीं होता कि आप कोई टॉपिक रटा मार के जाए और वही आए। ऐसे का मतलब होता है कि आप अपनी अटेम्प्ट करें, जो दिए हुए टॉपिक है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं आप उसको अटेम्प्ट करें। अच्छा, दूसरी जो चीज होगी इंग्लिश के पेपर में वो है प्रेसी राइटिंग जो है वो भी एक आर्ट है। प्रेसी राइटिंग ये भी एक सवाल होता है। अब इसके नंबर जो है वो पेपर के लिहाज से एलोकेट किए जाएंगे। नॉर्मली इसके नंबर भी 20 होते हैं, 20 नंबर की जो है वो प्रेसी राइटिंग होती है। अब प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, आपको एक पैसेज दिए होते हैं, आप उसमें उस पैसेज का क्या करना होता है, 1/3 करना होता है और उसको क्या करना होता है, टाइटल सजेस्ट करना होता है। तो ये पैसिव राइटिंग होती है। इसके लिए भी प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। आप इसके लिए आप जो है वो एफएससी लेवल की जो पेपर हैं आप उनको उठाएं, और या पास पेपर हैं जो उनको उठाएं और उनको प्रैक्टिस करें। और प्रेसी का भी जो है वो अलग से आपको एक लेक्चर दिया जाएगा कि प्रेसी राइटिंग जो है वो कैसे की जाती है। कंपोजिशन में क्या बात आपसे पूछी जा सकती है। कंपोजिशन इसमें जो दिया हुआ है ये पूछ सकता है। कंपोजिशन में ये होता है कि आपको टॉपिक राइटिंग का कहा जाता है। आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और आपको कहा जाता है आप इस पे जो है वो अपनी जो है वो दें, अपनी राय दें, अपनी सजेशंस दें। तो टॉपिक राइटिंग होती है। जस्ट लाइक ऐसे होता है, लेकिन ऐसे से कम आपने एक टॉपिक को करना होता है। ऐसे में तो आपने डिटेलिंग करनी होती है ना। तो कंपोजिशन में क्या होता है, एक टॉपिक होता है, आपने उस पर जो है वो टॉपिक राइटिंग करनी होती है। बहुत दफा जो है कंपोजिशन में स्टोरीज वगैरह भी आती है, लेकिन इससे पहले किसी भी पेपर में स्टोरी वगैरह लिखने के लिए नहीं दी। कंपोजिशन में वो आपको टॉपिक ही देगा। फिर उसने साथ जो है कंपोजिशन में और क्या चीजें वो ऐड कर सकता है। कंपोजिशन में वो ग्रामर की चीजें भी इसके साथ जो है वो ऐड कर सकता है। और ग्रामर की चीजों में वो क्या चीजें ऐड कर सकता है, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, उसमें जो है वो इडियम्स वगैरह हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं और उनको जो है वो जुमलों में यूज करना होता है, या इडियम्स होते हैं उनके मीनिंग लिखने होते हैं, या वोकेबलरी होती है। और वोकेबलरी में जो है वो एंटोनिम सिनोनिम वगैरह जो है वो आपको दे सकता है। एंटोनिम सिनोनिम जो है वो ये भी आपके उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन जो है वो भी जाहिर सी बात है शामिल होता है इसमें। और इसके अलावा ग्रामर के पोर्शन की जो और चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं आपको जो है वो एमसीक्यूज की टाइप में भी कुछ चीज़ें दे सकता है कि आप जो है वो 10 एक ब्लैंक दे सकते हैं, 5 एक ब्लैंक दे सकते हैं इसको, या आपको ट्रांसलेशन वगैरह भी दी जा सकती है। ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू टू इंग्लिश भी होती है और बाज़ दफ़ा इंग्लिश टू उर्दू भी होती है, ये देख लें। तो इंग्लिश टू उर्दू तो आसान होती है, और उर्दू टू इंग्लिश जो है वो थोड़ी जो है वो क्या होती है, डिफिकल्टी आ सकती है। इसको ज़रा देखना होगा। इससे पहले जितने पेपर आए हैं तो ग्रामर के रिलेटेड ये चीज़ें उन्होंने दी हैं। अच्छा, लेटर राइटिंग जो है वो भी एक बड़ा आर्ट है, और लेटर राइटिंग इंग्लिश में जो है वो इस पेपर में आपसे पूछेगा। और लेटर राइटिंग जो है वो फॉर्मल लेटर आपसे पूछा जाता है, और कोई भी फॉर्मल लेटर जो है वो आपने लिखना होता है। और ये भी हम लेटर पे भी इसके तमाम हिस्सों पे हम एक एक लेक्चर देंगे। ऐसे पे देंगे, प्रेसी पे एक लेक्चर देंगे, और ये कंपोजिशन और ग्रामर के पोर्शन पे एक लेक्चर होगा, और लेटर राइटिंग पे पूरा लेक्चर होगा। इसके अलावा भी लेटर राइटिंग पे हमारे लेक्चर ऑलरेडी इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आप लेटर राइटिंग जो है वो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये तो इंग्लिश का जो है वो कोर्स आउटलाइन थी, मैंने उसको थोड़ी डिटेलिंग की। अब जनरल नॉलेज की तरफ चले जाते हैं। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर सिचुएशन में आपसे क्या पूछ सकता है। तो करंट अफेयर में आप देखें, करंट अफेयर में कुछ इश्यूज जो हैं वो हमारे जो है वो नेशनल इशू होते हैं, और कुछ जो है वो इंटरनेशनल इशू होते हैं। आप इनको डिवाइड कर दें, कौन कौन से नेशनल इश्यूज हैं और कौन कौन से इंटरनेशनल इश्यूज हैं, तो आप उनको डिवाइड कर दें। और करंट अफेयर में पास जो है वो हिस्टोरिकल इश्यूज को या हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल करंट इश्यूज पे रहेगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स और इश्यूज जो हैं वो भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो सकते हैं, या दुनिया से रिलेटेड जो है वो वर्ल्ड से रिलेटेड कोई चीजें हो सकती हैं। तो ये भी आपने इनको भी जो है वो देख लेना है। 50 नंबर इसके होंगे जनरल नॉलेज में, और 50 नंबर जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स और कश्मीर अफेयर्स के होंगे। और पाकिस्तान अफेयर्स में फिर जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री वगैरह से भी आपसे एमसीक्यूज कर सकता है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और फिर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है ये मोस्टली 1857 से लेकर 1947 और फिर करंट जो है वो टिल डेट तक आपसे मुख्तलिफ चीजें जो है वो इसमें
पूछी जा सकती हैं। डिटेलिंग करेंगे हम हर एक चीज को अलग से जो है वो उनके ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे। और कश्मीर अफेयर में 50 में से इसके भी कुछ नंबर होंगे, 20-25 नंबर इसके भी होंगे। कश्मीर अफेयर पे यानी आप 1846 से लेकर और करंट जो है वो 2025 तक कश्मीर के हवाले से जो भी चीजें हैं वो आपसे पूछ सकता है कश्मीर अफेयर में। ठीक है, तो ये कश्मीर अफेयर और करंट अफेयर का पेपर इकट्ठा होता है। जनरल नॉलेज किसको नाम दिए जाते हैं, 50-50 नंबर दो पोर्शन के होते हैं। तो इस तरह से ये 200 नंबर ये हो गए। और तीसरा जो पेपर आपका होगा उर्दू का। अब उर्दू में भी सेम जो है वो एक आपको मजमून नवीसी होगी, ऐसे लिखना होगा। तो उर्दू का भी आपको जो है वो लेक्चर जो है वो दिया जाएगा कि उर्दू का मजमून कैसे लिखा जाए। उर्दू में प्रेसी जिसको जो है वो तलखीस कहते हैं, और तलखीस निगारी भी होती है। और कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन जिसमें आप जो है वो कोई ग्रामर का पोर्शन होगा, या आपको कोई उर्दू अदब के हवाले से कोई चीज़ पूछी जाएगी, या उर्दू की जो है वो पोइट्री के हवाले से पूछी जाएगी, या उर्दू की जो तारीख के हवाले से पूछी जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आपको पूरे लेक्चर की सूरत में देंगे। और लेटर राइटिंग फिर भी, ये भी उर्दू में भी लेटर राइटिंग होता है जैसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग है। तो ये लेटर राइटिंग जो है वो मुख्तलिफ जो है वो उस पे टॉपिक्स पे आपको मजमून लिखना, सॉरी खत लिखना होता है। और ये भी जो है वो फॉर्मल लेटर, उर्दू में भी जो है वो फॉर्मल लेटर जो है वो आपसे पूछे जाता है, यानी इनफॉर्मल लेटर जो है वो नहीं पूछे जाते, फॉर्मल लेटर जो है वो इस किस्म के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 100 नंबर का ये होगा। हर पेपर के जितने पार्ट्स हैं ना उन पे हम क्या करेंगे, एक एक लेक्चर बनाएंगे, 10-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे और आपको क्रक्स देंगे कि आपने 10 दिनों में क्या चीज तैयार करनी है। ये 10 दिनों के लिए हम आपको क्रक्स देंगे इसमें। अब उसके बाद जो है इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है। तो इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन हमेशा से लोग इसको आसान समझते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इस दफा फिका में लोगों के साथ हाथ हो चुका है। ACSO के इम्तिहान में लोग पेपर दे गए और फिर सारे रोते रहेंगे जी फिका ये हो गए, लोगों ने जाके कोर्स में रिट्स भी की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब इस्लामिक स्टडीज में आप ये देखेंगे वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे इस्लामिक स्टडीज आप देखें नबी इस्लाम की जो है वो जो है वो मक्का लाइफ, मक्की जिंदगी, फिर मदनी जिंदगी है, फिर उसके बाद जो है आप देखें कैलिफेट है, कैलिफेट के हवाले से पूछ सकता है। फिर उसके बाद जो है उमैयद जो है उनके बारे में पूछ सकता है। फिर जो है वो अब्बासी हैं उनके बारे में जो है वो पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद जो है उस्मानी हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो है सब कॉन्टिनेंट में जो है वो इस्लामिक स्टडीज के हवाले से कोई जो सूफिया की सब कॉन्टिनेंट में जो सूफीज़म है उस हवाले से पूछ सकता है, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज में। और इसके अलावा जो है वो जो बेसिक बिलीव्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में पूछेगा। बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो हमारे बिलीव्स जो हैं वो हमारे अकायद जो हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, फिर सूद वगैरह, इसकी हुर्मत, फिर जिहाद, और ये यानी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लामिक बिलीव्स है बेसिक, उनके बारे में पूछ सकता है। इस्लामी तालीमात के बारे में पूछ सकता है, और इस्लामिक टीचिंग के बारे में पूछ सकता है। इस्लामिक जो है वो वे ऑफ लिविंग के बारे में पूछ सकता है। इस्लामी जो है वो माशरे के बारे में, इस्लामी निज़ाम मईशत के बारे में आपसे पूछ सकता है। इस्लामी जो है वो निज़ाम जो है वो खिलाफत के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। यानी इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो एक डीप जो है वो अपने अंदर जो है वो सब रखता है। इसमें कोई कुरानिक आयात की ट्रांसलेशन भी आपसे बाज़ दफ़ा पूछी जा सकती हैं। ये इस तरह से तो हुआ नहीं है इस्लामिक स्टडीज़ में, लेकिन बाज़ दफ़ा से ये होता है कि किसी कुरानिक आयत का किसी हदीस का हवाला देकर आपने किसी टॉपिक के ऊपर आपको कहा जाता है आप इस पर लिखें। यानी जैसे कि आपको कहा जाएगा सूद की हुर्मत के हवाले से कुरानी हवाला जात और हदीस के हवाला जात लिख करके उसके ऊपर लिखे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर भी हम एक पूरा डिटेल जो है वो लेक्चर देंगे। तो ये 400 नंबर के जो पेपर हैं, तो ये 10 दिनों में, चूंकि आपने क्रक्स करना होगा, आप कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें करनी होंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह हम आपके छोटी छोटी वीडियोस में आपको बड़ी बेहतरीन किस्म के क्रक्स देंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे पेपर की, और इंशाल्लाह आप जो है वो 400 नंबर में से अच्छे नंबरों के साथ जो इस एग्जाम से गो थ्रू होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।